My funda is to tell you, make you aware of such technologies. So just 2 volunteers who would like to give me your phone numbers and only your phone numbers. मेरे को आपका phone नहीं दोगे तो भी चलेगा, मेरे को सिर्फ आपका नंबर दीजिए. The phone should be with you right now over here. 98315 ये एंड्रॉइड नोकिया आईफोन कुछ भी चलेगा सर. मैं आपके फोन को टच नहीं कर रहा. यस सर, लास्ट सर. 98310 25180. Sorry? 25180. Sir, I am little bit sorry for all of you. I'm going little bit fast. मैं थोड़ा रॉकेट स्पीड पे जा रहा हूँ, बट मैं थोड़े टॉपिक्स नहीं कवर कर रहा हूँ. सर मेरा नेम प्लीज. औरव जी. बराबर. आपका नंबर है सर. आपका नाम? संदीप. संदीप जी. एंटर कॉलर आईडी ऑन द डिस्प्ले. किनका नंबर डाला है? औरव जी का. एंटर नंबर ऑन द कॉल. किनका नंबर डाला है? संदीप जी का. पढ़ के बोलिए क्या होगा. कॉल किसको जाएगा? कॉल किसको जाएगा? संदीप जी को जाएगा. नंबर किसका दिखेगा? औरव जी का. सी आप में से किसी को भी अगर इन दोनों के खिलाफ थोड़ा भी मस्ती है या थोड़ा भी अगर खुन्नस है, आप अगर अभी संदीप जी को कॉल करेंगे ना, आपका नंबर दिखेगा नहीं. किनका नंबर दिखेगा? औरव जी का नंबर दिखेगा. आप 10-12 गाली दीजिए, फोन काट देना. बराबर. फिर जब संदीप जी कॉल वापस करेंगे तो कॉल आपको नहीं आएगा, किधर जाएगा? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. किसी को करना है ऐसे कुछ? करते कैसे मैं आपको बोल देता हूँ. Then I leave it up to you. So you go to the website and say what? Get me a code. Once you see get me a code, on the right hand side, can you see this website has generated a code for you? Yes. Now any one of your participants will need to call on the first number or will need to call on the second number. ठीक है? कोई भी एक पार्टिसिपेंट फर्स्ट नंबर पे कॉल कीजिए या सेकंड नंबर पे कॉल कीजिए. आप जैसे ही कॉल करोगे ना, वेबसाइट बोलेगा ये कोड डालो 15620. आप जैसे ही कोड डालोगे, वेबसाइट पे मेक कॉल टू संदीप जी will not display your number but will display any one participant. Please call. But anyone who is going to call, I would like to tell you this is an international number. International rates will be applicable. 1 मिनट का सिर्फ 15 रुपए जाता है. तो one volunteer please call. And anyone who is calling, just put it on speaker please. 004487268211. ऑलरेडी फोन आ रहा है. एक फोन ऑलरेडी आ रहा है. नहीं सर, वो मेरा नहीं है. आप उठा सकते हैं सर वो. नहीं सर, अभी नहीं. वो इधर कॉल करना पड़ेगा. जस्ट पुट इट ऑन. That rocks the world. Crazy Call is the ultimate tool for making prank calls and fooling your friends. It allows you to change your caller ID and voice. Please enter the code you got from the site, followed by the hash key. So what is the code? 15620 hash. You can change the voice of male to female, female to male. Good. Please wait. At any time you can press down to make your voice pitch higher or A to make your voice pitch lower. You're connecting your call. Have fun. नाइन 9831503290. Hello sir. 22 9831503290. 03290, right? हाँ. Just pick up the call sir. अरुण जी का नंबर इधर सर, कुछ बात कीजिए जरा. Just say something sir. फोन इज ऑन स्पीकर. Phone it up, speak up. I hope you understanding. सर आपको कुछ बात करनी होगी तो I hope you understanding. Both are talking. We are reflecting whose number? Or sir number. So just cut the call now. Disconnected. Okay, just cut the call. Okay, now just a kind question was just a simple question to all of you. आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है, राइट? अभी जब संदीप जी कॉल वापस करेंगे, कॉल इधर आएगा कि इधर जाएगा? इधर है. Sandeep ji, just a kind request, you can make the call back, dial back on the same number. This time it will be charged locally. तो अभी लोकल और सर अगर फोन नहीं उठाते तो चार्ज भी नहीं लगेगा. आ गया, राइट? Can you imagine? Without touching the phone, I don't even came close to your phone. और ऐसे जरूरी नहीं है कि हम लोग रूम में बैठे कोई हो रहा है. अगर मैं बॉम्बे में बैठा होता तो भी ये काम कर सकता. लीगली सर भी आंसर. इसके लिए मैं बोला था ना सर कि मैं आपको सब चोरी करना सिखा दूंगा. फिर अगर आपको थोड़ा उत्साह लगता है कि चलो हम भी थोड़ा ऐसे करते हैं, देन सर विल मेक यू बॉयल डाउन. मतलब ऐसा कि भाई आईटी एक्ट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईपीसी है
और बहुत सारे है मतलब एक्ट है, इंडिया के कानून है, तो वो आपको थोड़ा बताएंगे कि भाई इसमें कितने साल की सजा हो सकती है। ओके, तो देन यू गेट ए फेयर आइडिया। बट माय रिक्वेस्ट, माय इंटेंशन इज वेरी वेरी सिंपल। सच ए टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट सर, मेरा आधा से मतलब बोलते हैं ना डिटेक्टिव का आधा से ज़्यादा अगर कोई धंधा चौपट कर रहा होगा ना तो ऐसा सब एप्लीकेशन ही है। हस्बैंड को वाइफ के ऊपर डाउट है, वाइफ को हस्बैंड के ऊपर डाउट है, तो हस्बैंड क्या करता है, वाइफ को एनिवर्सरी के टाइम पे फोन गिफ्ट में दिया जाता है। अगर वाइफ को डाउट है तो वाइफ हस्बैंड को एनिवर्सरी के टाइम पे फोन गिफ्ट में दे देगी। बिफोर द फोन इज गिफ्टेड ऐसा कोई भी एक एप्लीकेशन डाल देंगे जहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन, व्हाट्सएप, फोटोज, वीडियोज सब पता चल जाएगा। अरे वेल टू डू फैमिलीज भी आज के लिए एप्लीकेशन यूज करना चालू कर चुके हैं। वेल टू डू फैमिलीज में क्या होता है, लड़की का मैरिज है, अरेंज मैरिज होती है, तो लड़की की फैमिली ऑफिस में आके मेरे को बोलती है सचिन हम लोग को सामने वाले लड़के का फर्स्ट हैंड रिपोर्ट चाहिए। मैं उनको ये भी समझाता हूँ, मैं थोड़ी डिटेक्टिव पीछे पीछे भाग के फोटो वोटो निकाल के शैडो वैडो करके उनको रिपोर्ट दूंगा। नहीं, ऐसे करने का भी नहीं है। हम लोगों ने सुना है कि ऐसा एक एप्लीकेशन आता है जो फोन के अंदर डाल देंगे ना तो पूरा फोन का आजू बाजू की बातें, कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो वोटो, वीडियो, लोकेशन सब मिल जाता है। तो हम लोग क्या सोच रहे पता है, एंगेजमेंट के 10 या 15 दिन पहले ना उस लड़के को फोन गिफ्ट में दे देंगे। बिफोर द फोन इज गिफ्टेड ऐसा एक एप्लीकेशन आके दे देंगे। 10 दिन काफ़ी होगा उस लड़के का फर्स्ट हैंड रिपोर्ट निकालने के लिए। ना काका की जरूरत, ना मामा की जरूरत, ना खानदान में किसी को भरोसा करने की जरूरत। फर्स्ट हैंड रिपोर्ट घर बैठे बैठे आराम से बैठ के देख सकते हैं। और वो लड़का बाद में बोल भी नहीं सकता कि मैंने ऐसी बात नहीं की, मैं ऐसी जगह पे नहीं गया था। आई होप यू आर क्लियर। सी, और कुछ याद रखे ना रखे मेरे इस लेक्चर से, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि फ्यूचर में आके कोई भी अगर आके आपको फोन गिफ्ट करेगा तो फोन लेने का नहीं। अगर इन लॉज ने भी अगर आपको फोन गिफ्ट किया या आपके होने वाले लड़के या लड़की को भी अगर फोन गिफ्ट मिलेगा तो भी फोन यूज करने का मे बी द इंटेंशन वुड बी गुड, बट फिर उनको इतना पूछता कि आपने भी कोई सचिन नेहरा का सेमिनार अटेंड किया था, फिर उन्होंने बोल दिया यस, तब तो डेफिनेटली फोन यूज करने का नहीं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, बट यस देयर आर यस now so but now there are applications which will be able to catch even if you have done 30 seconds, that is that. बट अभी इतना डरा है तो थोड़ा आपको बचा भी देता हूँ। मतलब ऐसे हाउ डू यू लर्न टू प्रोटेक्ट। फर्स्ट रूल, अगर आपको लाइफ में कोई भी लिंक भेजेगा ना, इनकम टैक्स का आएगा, कस्टम का आएगा, एक्साइज का आएगा, टीडीएस का आएगा, बैंक स्टेटमेंट का आएगा ना, क्योंकि 2011 में मैंने इंडियन गवर्नमेंट के बिहार के ऊपर सर्वे कंडक्ट किया था कि भाई इंडिया में अगर हैकिंग करना होगा ना सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं। टॉप 10 वेज कि इंडियंस हैकिंग में फंसेंगे कैसे। बाय मी, बिकॉज आई एम एन इंडियन, आई एम ऑल्सो ए हैकर, विच इज अ वेरी वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन because I can understand India's mentality very well. मैं क्या करूँगा, नंबर 4 पे क्या आता है पता है, ग्रीड, लालच। आपको ना 3-4 दिन के बाद एक मेल आएगा, all the FAFA participants who had registered for this one day course have been given 3 movie tickets for free. On book my show पे जाओगे ना तो 3 पे 3 मूवी टिकट फ्री में दिया जाएगा। कितने लोग एक्सेप्ट करोगे? सभी लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में किधर कुछ भी फ्री में दोगे ना एक बार पब्लिक आता ही है, राइट। How will you pay for that movie ticket? Net banking debit card या credit card. I'm an Indian, I'm an honest thief. I will actually send you the movie tickets because मेरे को पता है आप लोग कौन से टाइम पे मूवी देखने जा रहे हो, उसी टाइम पे आपका नेट बैंक का एकदम मूवी उतर जाएगा। ग्रीड, कॉन्सेप्ट नंबर 4। ग्रीड नहीं काम करता ना। नंबर 3 पे आता है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। अज्यूम करो कि आप लोग सब लोग मिस्टर मेहता हो और आपको बैंक पर से एक मेल आता है, मिस शाह, एज पर योर रिक्वेस्ट वी आर सेंडिंग योर लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट। आप लोग सब लोग मिस्टर मेहता हो, कोई मिस शाह को पहचानते भी नहीं हो, ना क्लाइंट लिस्ट में है, ना फेसबुक में है, ना आजू बाजू में रहती है, किधर भी नहीं है, लेकिन उसके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको भेजा गया। आई एम आस्किंग ऑल द सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्हाट विल यू डू? नहीं, हम लोग जैसे यंगस्टर्स को तो पूछ के मतलब ही नहीं होता ना, क्योंकि हम लोग तो ये सोच के ओपन करते हैं कि स्टेटमेंट आया कि फोटो भी आया, तो डायरेक्ट स्टेटमेंट, बट वो तो स्टेटमेंट तो ओपन होने ही वाला है एट द एंड ऑफ द डे। लिसन, when I talk about curiosity, matrimonial profile has given me one of the best results. जब मेरे को हैकिंग का एक असाइनमेंट आता है, पता चलता है सामने वाले जो मैन पुरुष इंसान है, मैं क्या करता हूँ, किसी भी लड़की का ईमेल आईडी बना देता हूँ, सीमा शाह 92, हिना खान 94, कुछ भी ईमेल आईडी बनाओ, पीछे 92, 93, 94, 95 डालना कंपलसरी है। Why? Every man takes less than 5 seconds to understand. ये साल में बॉर्न होगी, 2016 चालू है, मतलब 22-23 साल की लड़की है। मेल के जैसे मैं मेल भेजता हूँ, अंदर क्या लिखता हूँ, as per our discussion going on shaadi.com or Jeevan Shadi or something like that, I am sending you a few of my photos. मैं मेरे photos आपको भेज रहा हूँ. Kindly look at these photos and send me your photos also, so we can take matters forward. और नीचे लड़की के 4 फोटो डाल देता हूँ. And I am very sorry to say this, sir. सामने वाला भले फिर अंकल क्यों ना हो, 45 years old, 50 years old, happily married with 2 kids,
लेकिन उनको अगर एक शादी का प्रपोजल जाता है ना, चारों चार फोटो 2 बार तो डाउनलोड करते ही है। ऑल द फोटोज विल कंटेन नथिंग बट व्हाट ये वायरस। एक फोटो में वायरस नहीं होगा तो दूसरे में तो जाएगा ही जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा तो तीसरे में जाएगा, तीसरे में नहीं जाएगा तो चौथा तो मिलने वाला। ग्रीड नंबर 4, नंबर 3 क्यूरियोसिटी, नंबर 2 इज फोटोग्राफी। सेक्स स्टिल सेल्स इन इंडिया। अगर आज भी सनी लियोन के लेटेस्ट मूवी के फोटोज या वीडियोस किसी भी स्कूल के बच्चे लोग को भेजो, लड़के लोग को भेजो या किसी को भी भेजो, हंसते खेलते उन लोग भी एक बार तो डाउनलोड करते ही। बट व्हाट वुड बी नंबर 1? सपोज यू आर हैकर, यू आर एन इंडियन हैकर, किसको जाके अटैक, मतलब नंबर 1 पे कौन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटैक इनटू इंडिया? ऐसा क्या चीज है सामने वाले को भेजोगे ना फंसेगा ही फंसेगा। सरकारी डर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फियर, यस। नंबर 7 एब्सोल्युटली राइट सर, जो अभी हम लोगों ने बताया ना, टैक्स चालान, रिफंड, यस एब्सोल्युटली राइट सर। इमोशंस, ब्लड डोनेशन दे दो, ये करो, यस दे राइट। नंबर 9 जॉब स्कैम, आपको BMW में जॉब मिला है, TCS में जॉब मिला है, विप्रो में जॉब मिला है, बट स्टिल इट इज नॉट द नंबर 1। लॉटरी इज अ पार्ट ऑफ ग्रीड। नंबर 1 ऐसा क्या चीज है? यस इट इज रिलीजन, भगवान। Fear is ranked as number 1, fear of God is still ranked as number 1. अभी महाराष्ट्र में गणपति जी इज वेरी वेरी फेमस। जब ये गणपति जी का फेस्टिवल आता है ना, लाल बाग से राजा की फोटो फॉरवर्ड इट टू 9 people, गुड लक इन 9 minutes और 9 years of bad luck will follow। अगर कलकत्ता में करना होगा तो दुर्गा जी का जब आता है उसी दिन पहले दिन में भेज दूंगा माता जी का फोटो, 9 लोगों को फॉरवर्ड करो, 9 साल तक के लिए सुखी, वरना 9 साल तक के लिए बनौती चलेगा। बोलो क्या करेंगे? तभी तो एजुकेटेड लोग भी एक बार तो फॉरवर्ड करेंगे। बोलते हैं कि सर वी एजुकेटेड विल नॉट फॉरवर्ड। ऐसे सीए लोग के फाइनल लोग जो होते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ जिस मुहूर्त का टाइम है रात के 11:40। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम टू डू हैकिंग इनटू इंडिया। मतलब उस शुभ मुहूर्त में अगर आपने हैकिंग चालू किया ना, सक्सेस इज योर्स, विजय मुहूर्त माना गया, आपको सक्सेस विजय मिलना ही मिलना है। अगर कितने बजे चालू करोगे आप लोग तो 11:40 विजय मुहूर्त नहीं मानते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर आपका 1 लाख 3 लाख रुपए की लिमिट है, कैन आई विड्रॉ द 3 लाख रुपीज इन 1 डे? Yes, I can withdraw. I can use 3 lakh rupees in 1 day. Credit card में लिमिट नहीं है। डेबिट कार्ड में लिमिट कितनी है? जितना आपका अकाउंट के अंदर बैलेंस है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में लिमिट आ गया, 50 रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं होगा, बराबर ना? ट्रांसफर भी नहीं होगा। और मैं इंडियन हूँ ना, तो मेरे को तड़पा के पैसा निकालने में बहुत मजा आता है। रात के 11:40 आपको बैंक ने एक बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया होगा जिसका नाम है इंस्टा अलर्ट फैसिलिटी। व्हाट यू मीन बाय इंस्टा अलर्ट फैसिलिटी? जैसे बैंक में से पैसा विड्रॉ होगा, आप सबको SMS आ जाएगा। आ गया? सबके पास है? Do you have this facility? Yes. और आपके मोबाइल के अंदर भी कम से कम 500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे। Either yes or no? More than 500 कॉन्टैक्ट नंबर्स। Now tell me, कितने लोगों के पास बैंक का नंबर है? बैंक का टोल फ्री नंबर अपने मोबाइल के अंदर डाल के रखा है। See, hardly 3 or 4. This is the biggest irony of India ना। जिधर मेहनत का पैसा है उसका ही बैंक का नंबर नहीं है, बाकी दुनिया भर के कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल के अंदर डाल के रखे होंगे, और जिधर मेहनत का पैसा डाल के रखा है उसी बैंक का नंबर नहीं है, बराबर है? रात के 11:40 आधे से ज्यादा लोग सो जाते होंगे, सो गए, फोन साइलेंट के ऊपर है, किस्मत सो गई। जाग रहे हो तो थोड़ी देर के लिए किस्मत जाग रही है। रात के 11:40 पे आपको एक SMS आएगा, 20,000 रुपीज विड्रॉल। क्या होगा? टोल फ्री नंबर है ही नहीं, अकाउंट नंबर भी नहीं है रेडी। तब पूरे खानदान को जगाओगे और एक बेटे को उठा के बोलेंगे, बेटा अकाउंट नंबर ढूंढ लो। बेटी को उठा के बोलेंगे, बेटा टोल फ्री नंबर ढूंढ लो, जल्दी में फोन कर, गूगल के ऊपर सर्च मार। तब तक होगा 11:50 को और एक SMS आएगा, 20,000 रुपीज विड्रॉल, टोटल 40। तभी आपको छोटा सा टीनी मिनी से अटैक कर भी आना चालू हो जाएगा, और यहाँ से टोल फ्री नंबर आएगा, यहाँ से अकाउंट नंबर आएगा। किसी भी बैंक के टोल फ्री नंबर के ऊपर फोन कीजिए, क्या आएगा पता है? 1 के लिए हिंदी, 2 के लिए इंग्लिश, 3 के लिए मराठी, या 3 के लिए व्हाटएवर वेस्ट बंगाली, 4 के लिए, 5 के लिए और 9 के लिए वो दबाओ। तब तक 12 बज गए। 12 बजते विड्रॉ होना था 10,000 रुपीज। 12:01 मतलब न्यू बैंकिंग डे। एज पर बैंक आपकी दूसरी 50 रुपए की लिमिट खुली। जैसा नो, so 11:40 से लेके 12:20 तक you could end up withdrawing how much? Close to 1 lakh rupees from your hard-earned savings account. I hope this is good enough to wake you up from your sleep now. And now you understood why my lectures have been kept post the lunch only, right? See, this is why first thing that you really need to do to protect your debit card or a credit card is to have the toll free number. जिस बैंक में जिधर अकाउंट डाला है उसका टोल फ्री नंबर आपके मोबाइल के अंदर होना ही चाहिए। It's my kind request to all of you कि ये forensics audit you should start from your own house, from your own thing itself. Because आप जा रहे हो पूरी दुनिया बैंक को ऑडिट करेंगे, कंपनी को ऑडिट करेंगे, एमएनसी को ऑडिट करेंगे, और पता चला भाई हम लोग जैसे 2-3 यंगस्टर आ गए और आपका पूरा ऑफिस को ऑडिट करके
चलेगा। मेहनत आप करो 3 महीने का और हम खाली एक ही ऑफिस का ऑडिट करके पूरा बार चले जाएंगे। See, you are going to come in the eye of the hackers. You are going to come. You already come in the eye of the hackers. So it is little bit high time that you start learning how to protect your email accounts, how to protect your computers, how to protect your Wi-Fi, and more importantly, how to protect your net banking. अगर कोई भी आपको लिंक आएगा, never click on the link. What you need to do is just hover this mouse, hover the mouse over the link. आप है ना, आप खाली नीचे देख लेना इधर, over here. It will tell you the exact URL as to where the link is going to take you. इधर अगर जो स्टार्टिंग में अगर कोई आगे आएगा ना, तो विजन यूनियन लिखा हुआ आ रहा है. I hope this is clear. ऊपर इनकम टैक्स इंडिया है तो नीचे विजन यूनियन नहीं आना चाहिए. तो अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो वो देखो लिंक चले गए. ऐसे और एक मेल आया था, पता है ऐसे था. अभी आप लोग क्या करोगे इसके अंदर? Just hover the mouse over that particular link. Can you see this link coming now at the bottom? Yeah. And it will be Spurjit only. Can you see this? People at the front will be able to see. So if I remove this thing, see the link is gone. If I hover it over back again, see the link has come up. So this is for the rest of your life. If anybody were to send you any kind of a link, income tax होगा, custom होगा, excise होगा, TDS होगा, payment आएगा, refund आएगा, कुछ भी आएगा, कभी भी लिंक के ऊपर टिक करना, just hover that particular thing and you will be able to see it. Yes sir. This ये प्रोडक्शन जो आप बता रहे हो हॉवर करने वाला, दिस इज अ वेरी ओल्ड प्रोडक्शन. मतलब ये सब हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, सुने थे. अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकला है. In the sense? मीन्स दिस वी हैव हर्ड और लर्न वेरी लॉन्ग कि आप हॉवर करोगे तो नीचे एक्चुअल लिंक दिखा देगा. अभी तक हैकर्स ने इसका कोई निकाला ना सर. ये देखो ये जो ना ये कैन यू सी द लेटेस्ट मेल ओवर हियर रिफंड वाला. दिस इज अ सबमिटेड रिक्वेस्ट. यू विल नॉट सी अ लिंक. यार इफ यू सी लिंक सबमिटेड रिक्वेस्ट मतलब क्या होगा? इमीडिएटली फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. राइट क्लिक करके इसमें चेक करते हैं ना. हाँ राइट क्लिक करके भी सर, अगर आपने राइट क्लिक करके भी ओपन किया ना, मैंने पता है आपको दूसरा बताया था इनकम टैक्स इंडिया .gov.in वाला था. अगर आप राइट क्लिक करके भी ओपन करो या क्लिक करके भी ओपन करो, आपको क्या खुलेगा? टैक्स चालान .zip. That file will get automatically downloaded. So in this case, there is no link which will be shown over there. But just in case on Facebook or something like that, if you see anything like that, just what you will do, hover the mouse over there and click it up. Another step of doing net banking securely is what? Never do the banking in the same browser on which you have opened all the other things. हर एक browser का एक नया incognito window आता है. I hope you are aware. New incognito window. Can you see this? In Chrome also it is given. You have to just click on that new incognito window. So ये जो window open होता है ना, इसमें कोई भी cookies या history save नहीं होता. By default it never saves any history or cookies. So you have to just manually go over there, write your bank name, and you can do it with that. Oh yes. Can you repeat please? Same. This is sir पूरा safe नहीं है, but comparatively you are increasing the layer of security over here. And see, it is high time. Please learn to think about जो system audit आ रहा है. System audit ऐसे बोलता है ना, धीरे-धीरे it is going to be made compulsory on PSUs and government departments and corporates, and then system audit will also be made compulsory on 2 professionals in India. One is who? Doctor, and another is chartered accountant. Because your office contains a lot of financial information. Doctor's office will contain a lot of health information. और future की अगर मैं बात करता हूँ, cyber warfare करके एक concept आता है. Cyber warfare मतलब क्या? China has got a building almost of 90 floors where only people are employed between 12 to 15 years of old. 12 साल से लेकर सिर्फ 15 साल के लोगों को उधर ट्रेनिंग दिया जाता है. 15 साल के होते हैं ना, they have been graduated as one of the most elite professional hackers of the world. सबसे one of the best hackers में माना जाता है. And their age only at 15. Can you tell me what will be their काम क्या करने का होगा उन लोगों को? पूरे floors को. उसमें से 15 floors are dedicated to hack into US. 15 floors are dedicated to hack into UK, 10 floors are dedicated to hack into Germany and France. How many floors must have been given for India? How many of you are optimistic on India? बोलते हैं इंडिया को भी 10 से ज़्यादा फ्लोर दिया होगा. एक फ्लोर. एक फ्लोर. Pessimistic. How many of you are on the pessimistic side? Easy to hack India. Balance सारा India. Initially they had kept 3 floors for the Indian government website. They came into an Indian government website. They took out all the information. They found the information to be totally useless. They threw it off. And they reduced the floor size to 1.5. You know, fortunately or unfortunately, our Indian ministers have not kept any crucial information on Indian government website. Crucial information छोड़ो, information ही नहीं मिलता government की website के ऊपर. In fact, एक Chinese hacker इतना frustrated हो गया था, वो ना अपने report में comment में लिख के गया था
that if you want to take out any information from any Indian government website, you will actually have to file an RTI. Otherwise, no information is going to be available online. तो वो comment में लिखिएगा. But जिस हिसाब से China attack कर रहा है, this is known as what? Ghost warfare, cyber warfare. When two countries are going to come to war, they are not going to send even one single soldier. They are not even going to send any nuclear bomb. What they will do? They will attack the financial stabilities of the country. Stock market को ऊपर नीचे कर देंगे, बैंक बैलेंस को हिला के रख देंगे. सोल्जर के बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए के बदले अगर खाली 50 रुपए का बैलेंस दिखेगा, तो सोल्जर बंदूक लेके किधर जाएगा? जंग लड़ने जाएगा, बैंक वाले के पास जाएगा. ऑब्वियसली वो बैंक ही जाने वाला है. एक महीने 15-20 दिन पहले की बात है. अरे हमें तालिबान या अल-कायदा का one of the topmost leaders was killed by a drone. Who sent that drone? Where was the drone sent? In Pakistan. You know the speed at which this car was traveling? He was traveling in a very remote area, deserted area. He was traveling at 80 kilometers an hour. Nobody over there knew, but they managed to send a drone either from Afghanistan or from Pakistan airspace. और पाकिस्तान के airspace भी मां ने पकड़ ही नहीं पाती कि कौन अपने इधर आया. They sent a rocket also. They killed him off and they went off also. Imagine what technology and what precision they have been trying to use. See, future में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगा जिसको बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको बोलते हैं. IP पता है IP क्या होता है? IP ध्यान देना, क्योंकि अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई आया होगा तो उसको ट्रेस कैसे करोगे आप लोग? थ्रू IP. अगर आप लोग कुछ बाहर जाके खाओगे ना, वड़ा पाव बोलते हैं या आपने कोई समोसा पाव खाया, इट इज अ पोटैटो चिप. आई जस्ट टेक 5 minutes and then I'll wrap it up. पोटैटो चिप खाते हैं, शुगरी डिश होता है. फ्यूचर में हम लोग जैसे जो यंगस्टर्स आएंगे ना, हम लोग एक चिप खाएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे इधर फिंगर के अंदर डाली जाएगी या पैर के अंदर डाला जाएगा. उसको हम लोग बोलेंगे IT चिप बोलेंगे. IT चिप मतलब वो चिप इतना अच्छा होगा कि मेरी पूरी बॉडी को डायग्नोज कर लेगा और मेरा लोकेशन भी ट्रैक करके देते जाएगा. इतना अच्छा लोकेशन ट्रैक करेगा कि सपोज मैं ऑफिस से बाहर निकला शाम के 6 बजे, मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहूंगा, मैं थोड़ा कंटाल गया होऊंगा, मैं ऑफिस के बाहर निकल के एक पान बीड़ी शॉप के उधर रुक गया और मैं सोचता हूँ कि चलो मैं एक सिगरेट फूक ही लूंगा. मैं 2 मिनट से ज्यादा रुक जाऊंगा ना, मेरी वाइफ को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये भाई साहब उधर खड़ा है और लगता है तो अभी एक सिगरेट चालू भी कर चुका होगा. इमीडिएटली फोन आ जाएगा कि उधर क्यों रुक गए हो, सीधा सीधा घर पे आओ. मैं सोचूंगा चलो सिगरेट पीता थोड़ा और आगे जाऊंगा, वड़ा पाव का एक डिश लूंगा या समोसा पाव करना चालू करूंगा, थोड़ा डायबिटिक लेवल करूंगा. अगर मैंने 2 बाइट भी खाया ना वड़ा पाव का या समोसा पाव का सपोज, इमीडिएटली द चिप इन माय बॉडी विल टेल मी प्लीज कंट्रोल, बिकॉज आप डायबिटिक लेवल तक पहुंचने वाले हो. बट एक बार अगर आप कुछ खाना चालू करोगे तो रुकने वाले नहीं है. आप और 2 बाइट लोगे, मैं और 2 बाइट लूंगा, इमीडिएटली द चिप मेरे को क्लियरली बोल देगा भाई अभी तो तू डायबिटिक लेवल तक पहुंच ही गया है, अभी तू और खाएगा ना तो तू क्रॉस भी कर लेगा. पर फिर भी मैं बोलूंगा भाई थोड़ा और चटनी डाल, थोड़ा और कुछ डाल और पूरा खत्म करके लौटूंगा. ट्रस्ट मी, एज सून एज आई फिनिश माय एंटायर समोसा पाव ना, इंश्योरेंस कंपनी से एक SMS आ जाएगा, क्लियरली लिखा हुआ आएगा भाई आपका प्रीमियम डबल हो गया है क्योंकि अभी आपने एक समोसा पाव खाया जिसका आपके डायबिटिक लेवल बढ़ा दिया गया. दिस इज व्हाट वी सी फ्यूचर ऑफ cyber crimes, where they will be able to trace us and they will be able to read every activity happening in our body. अभी तक कहाँ तक आया पता है? फोन की आजू बाजू तक बातें तक तो हम लोग पहुंच गए. I hope this is clear. The only thing that they are not able to see is what our mind thoughts. And now just to wind it up, if you have any questions, 1 or 2 I can take it up. But before that, I just like to share my details over here. Let's inform the answer accordingly. Yes sir, this is my email ID, that is my website, that is my contact detail, that is my original Facebook and LinkedIn ID. Yes, original Facebook and LinkedIn ID. shared with वो जो डॉक्यूमेंट आया, we downloaded it, unzipped it, उसके बाद उसको हमने खोल दिए, खोल के देखे बेकार है, डिलीट कर दिए. हाँ सर, एक बार आपने खोला ना तो वायरस पीछे इन्फेक्ट हो गया, फिर आप वो फाइल के साथ कुछ भी करो, कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है. फिर उसको कोई तोड़ नहीं है, डब्बा फेंक दो. नहीं, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मारो. एंटीवायरस कुछ नहीं करना. नहीं सर, एंटीवायरस के लिए तो हम लोग के पास नोट पड़ा है, वो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा सर. एक वेबसाइट आती है वो मैं आपको बोलूंगा, वायरस टोटल, पहले आप लिख लीजिए सर. हाँ सर, ये अभी CA के लेवल का एक क्वेश्चन आया है कि फाइल डिलीट करने के बाद रिकवरी कैसे होती है. अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे को, जब मैं 1-2 दिन का मैं वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, on behalf of the CA Institute also, we are going to make a request to even the Kolkata branch. I came in October for 2-day thing, but it was for ESA. But now across India we conduct a 1 or 2-day practical workshop for all the chartered accountants, जहाँ पे email account. So जितने भी लोगों का email account, कितने लोगों का Gmail account है, please raise your hands. Okay, so I'll just tell you how to protect your Gmail account, how to detect forensics. Gmail account के ना ब्राउजर के अंदर ओपन करके हमेशा एकदम नीचे आने का, और नीचे ना राइट हैंड साइड पे इधर दिखता है डिटेल्स,
Once you click on details now, Gmail will tell you the last 10 times when somebody has come inside your account, the last 10 times. Can you see this over here? India MH, India MH, India MH, India MH. India MH stands for what? डेट और टाइम अभी मैं आया हूँ क्योंकि मैं एयरटेल का आईपी है, मतलब महाराष्ट्र का बॉम्बे का ही आईपी होगा क्योंकि मैं उसका ही कार्ड यूज कर रहा हूँ, तो उधर आईपी आया है और मैं कौन से ब्राउजर या फोन के थ्रू आ रहा हूँ वो भी अपने को पता चल जाएगा. Yahoo also, sir, Yahoo will give for the last 20 times. Same thing. Oh yeah, but you will not be able to see these details in your mobile. You have to open your email accounts in the browser. Over here. What if you want now, I will send you the PPT. I will send the PPT to man. Okay. मतलब step by step instructions कि Gmail का forensics कैसे करते हैं, net banking की security कैसे करते हैं. We have prepared all the PPTs which I mail it to man and man can pass it on to all of you. Is there any impact like when I have to go in main banking? So if I am going through Google I am typing Bank of Baroda, then I am going to bank. So people say that जब आप Google से जाते हो तो वो और गलती उसका कम होता है. Seriously sir, Google में आपको और भी ऑप्शंस दिखने लगते हैं ना. It is better if you memorize this बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है और एक बार आप डालोगे ना तो उसको बुकमार्क कर दीजिए. हाँ वो बुकमार्क कर. बुकमार्क करके आप जाओगे then not a worry. बट ऐसे वही है. ऐसे तो वही है, गूगल के थ्रू सर्च मार के ऐसे थर्ड ऑप्शन लो. It is a worry. Yes. क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी अपने दूसरे बिल टैक्स करते हैं तो. Sir, understand the payment and banks are always secure. What we attack is the computer. आपका कंप्यूटर कितना सिक्योर है? सोचो कितने लोगों ने यहाँ पे एंटीवायरस के लिए पैसा भरा है? हार्डली 50%. कितने लोगों ने विंडोज के लिए पैसा भरा है? कोई भरा नहीं होगा, लैपटॉप के साथ साथ में आया होगा, वो भी आधा केस में ऐसे होगा. सोचो ना ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज पायरेटेड, तो 500-600 रुपए का एंटीवायरस बचा के आपको कितना बचाएगा? और आधे से ज्यादा लोग के पास वो भी नहीं है. और जिनके पास नहीं है, आप लोग पूरे साल में 600 रुपए का ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लोगे. नेट बैंकिंग का करोगे, IRCTC, बुक माई शो, वोडाफोन, अमेजॉन, स्नैपडील सब करेंगे, लेकिन 600 रुपए का एक भी एंटीवायरस लेने के रेडी होने वाले नहीं है. जिस दिन हैकर को आपका बैंक का एक भी डिटेल मिलेगा तो क्या शगुन के नाम पे 600 रुपए निकाल दे? नहीं, 10 साल का एंटीवायरस का खर्चा एक साथ निकाल के चला जाएगा. देन यू विल रियलाइज 600 रुपया वाज अफोर्डेबल. सी मैं आपको एंटीवायरस देती नहीं है, आप चाहिए वो एंटीवायरस खरीदते रहते हैं, जरूरी नहीं कि I'm just trying to have one layer of security. But Sachin, does antivirus really helps? Yes sir, at least some layer of something is better than nothing. But is that something useful? हाँ. JavaScript and all. Yes. Sir, then suppose at the time if you are submitting and if you can say disable the antivirus for say 15 minutes and then again you enable it, it would be preferred. Especially antivirus should be enabled because as a CA you have a lot of pen drives which you have kept it open and the pen drives are a part of your audit which you have your article person put the pen drives in some other office also to copy the files. So specially scan the pen drives because that is one of the best mediums through which a virus is going to be transmitted. So at least as soon as somebody puts in a pen drive in your PC, भले 3 seconds है, भले 1 minute है, but let it scan the entire pen drive. So that can be deterred up to some amount of time. Also, don't be under the assumption कि सर हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव में एक्सेल की फाइल है, एक्सेल की फाइल को पेन ड्राइव के साथ कनेक्ट, पेन ड्राइव के अंदर एक्सेल की फाइल है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर के अंदर डाला, एक्सेल की फाइल कंप्यूटर के अंदर ओपन की, चेंजेस कर दिया, फाइल को सेव कर दिया एक्सेल के अंदर, मतलब वापस पेन ड्राइव के अंदर पेन ड्राइव निकाल दी. कैन समबडी फाइंड आउट दैट एक्सेल फाइल ऑन द पीसी? टेम्प में रहेगा. Yes. Answer is yes. There is one software by the name of USB DView which will trace all the USBs that you have ever connected to your pen drive. Ever connected to your computer. That is the name of the software, USB DView. ये सॉफ्टवेयर जैसे ही रन करूंगा ना, मतलब मेरे इस कंप्यूटर के अंदर मैंने जितनी भी पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी होगी ना, उन सब का पूरा लिस्ट निकाल के बाहर बता देगा. Over here, can you see? जितना भी पेन ड्राइव मैंने डाला होगा वो सब पूरा. Here it is. What about the content of the pen drive? वर्जन एंड वो नेक्स्ट स्टेप है सर, नेक्स्ट स्टेप है. What about the आगे content? मतलब कोई बात में कौन सा डेटा गया, कौन सा डेटा कॉपी हुआ था, दिस आर द नेक्स्ट स्टेप्स. वन रिक्वेस्ट विच सीएस आल्सो आस्क्ड मी कि सर मेरा स्टाफ मेरे पीछे क्या काम करता है वो जरा आपको बताइए. क्योंकि होता क्या है, जैसे मैं वर्कशॉप चालू करता हूँ मैं पूछता हूँ आपको क्या चाहिए, बोलते हैं सर पूरी दुनिया में मेरी ऑफिस ऐसी निकलती है कि फ्राइडे को मूवी रिलीज होता है, सैटरडे को ऑफिस के अंदर अवेलेबल है. भाई ऑफिस का इंटरनेट फ्री है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कौन कितना डेटा कितना डाउनलोड करे कुछ पता नहीं है. So in order to find out who is consuming your bandwidth,
which employee is going on what kind of websites and whether they are doing any productive work. क्योंकि कितने आज लोग मेरे को आके बोलते हैं मेरा आर्टिकल 8 बजे तक बैठता है, लेकिन मैं उसको ये भी बोलता हूँ देखो 8 बजे तक बैठने की जरूरत क्या है, 5 बजे काम खत्म करके चला जा, बोलता नहीं हूँ मेरे को 8 बजे बैठने के लिए, लेकिन क्या होता है 5 बजे तक तो मैं खुद ही ऑफिस में नहीं जाता, तो उन लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस के अंदर जाऊँ ना सब एकदम लॉयली म्यूजिकल चेयर सब बंद हो जाता है, साइबर कैफे बंद हो जाते हैं और ऑफिस चालू हो जाती है जैसे मैं ऑफिस के अंदर जाता हूँ, वरना तब तक तो साइबर कैफे की तरह सब लोग यूज करते रहते हैं. दैट इज व्हाट जनरली सीएस वुड टेल. In order to find out what your article is doing, or I don't want to place any suspicion on anybody like that, there is one software which can help you to find out what activities are happening in your own PC behind in your absence. The name of the application is, and the application is free, it is ActiveTrack. सर देखो ये पूछो कि पेड है कि फ्री है, ये मत पूछो कि ये वाला एप्लीकेशन आपका डेटा लेके जाएगा कि नहीं. हाँ, What was the next question? How safe are these articles? ActiveTrack. Okay, wait, I'll just rename it. It is ActiveTrack. ये ना आपको 3 पीसी, एक ईमेल आईडी के ऊपर 3 पीसी आपको ट्रैक करने देगा. अभी आप समझ गए ना, और बाकी के पीसी कैसे ट्रैक करने हैं? बराबर. Wait, I'll just the website. I think I've changed the name of the website. That is it. हाँ, here it is. activtrak.com. Free employee monitoring software. So this will help you to monitor कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी वेबसाइट के ऊपर गया था, कितना उसने डाउनलोड किया है. HDFC की बैंक दोपहर के 1 बजे अचानक स्लो हो जाती है, 5 बजे अचानक फास्ट हो जाती है. वो क्या होता है, 1 बजे एम्प्लॉय को खाने का ब्रेक देते तो आप तो मूवी टोरेंट के ऊपर डाउनलोड करना चालू कर देगा, तो पूरा बैंडविड्थ कितना जाएगा टोरेंट और मूवी के पास. मूवी डाउनलोड हो गई तो 5 बजे बैंडविड्थ फ्री हो जाती है. सो दिस इज वेयर यू कैन फाइंड आउट. Oh yeah. This is a part of your forensics which you can do if you want in your own office. Start with it. And to answer the question, I have not gone into any person's email account. Trust me, मेरे पास आपके email accounts भी नहीं है. खाली आपको डराने के लिए खाली ऐसे बोल रहा था ताकि आप थोड़ा नींद में से जागो और फिर ध्यान दोगे कि कैसे क्यों मेरे अकाउंट के अंदर जो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था. So just to, sorry. हाँ, so वो बोले ना, अब मैं लिंक भेजूंगा आपको 3 पे 3 मूवी टिकट फ्री, टिक करो. Go over there, put your username and password. फिर आप बैंक का डालो, फेसबुक का डालो, जीमेल का डालो, किसके में डालो, we'll get it. सब परमानेंटली डिलीट करने के लिए चांस कम है, मतलब है, बट उसको सॉफ्टवेयर थोड़े महंगे आते हैं, 10-15 हज़ार रुपए का आता है. बुकी नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, बुकी. It's a popular known as because lot of bookies use it. So as soon as you restart the PC, entire data is wiped out. So even US is not able to recover that kind of data. That will teach in workshop. हाँ, better. My credit card has been fraudulently misused and withdrawn some money. I don't know how to just tell how to safely use net banking, credit card. Just See, debit card या credit card पीछे का जो CVV नंबर रहता है ना, I would sincerely suggest you wipe it off over there, write something else, but remember the CVV card number. या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा CVV नंबर है 045, तो मैं क्या करता हूँ 156 और नीचे माइनस का एक साइन डाल देता हूँ. 045 उसको पूरा ब्लैकआउट करके क्या लिखता हूँ 156 नीचे एक माइनस, विच मींस आई नो ये जो नंबर है उसमें मेरे को क्या करने का -1 करने का. इट इज सिंपल. प्लीज मल्टीप्लिकेशन में मत जाना, +1 +- 1 के ऊपर ही रहना. ओके, सो दैट वुड बी वो प्रेफर्ड. सेकंड इज हैव द लिमिट सेट. हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंटरटेनमेंट कार्ड बोलते हैं. एंटरटेनमेंट कार्ड मतलब क्या होता है, 1 डेबिट कार्ड 1 क्रेडिट कार्ड जिसमें लिमिट आप सेट करो 25,000 रुपए में खो सकता हूँ, बस उतना उसकी लिमिट, जितना आपका लॉस करने सहन करने का कैपेसिटी होगा. स्टेटस के नाम के ऊपर 3-3 कार्ड लेके नहीं घूमने का, क्योंकि अरे इतने अच्छे होटल में भी जाता ना मेरिट में, कितनी लड़की लोग क्या लेडीज लोग तो ऐसे कार्ड निकाल के बेटे को देते, बोलते 5789 डाल देना, कार्ड के साथ पिन आईडी भी बोल देते. डोंट डू दिस ऑल दिस काइंड ऑफ मिस्chievous थिंग्स ओवर हियर. डोंट ट्राई टू शो ऑफ दैट यू हैव गॉट 3 cards. One card which you are going to use it for swiping, one card will be same card will be used for your net banking. Same ditto card which is going to be, that is known as what an entertainment card. Entertainment card मतलब क्या, किधर भी जाओ वो कार्ड का, और 25-30 हज़ार रुपए का आपका कैपेसिटी, जितना आपका लॉस करने का कैपेसिटी हो, वो कार्ड का टोल फ्री नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक शुड बी इन योर मोबाइल. इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू कॉल अप एंड ब्लॉक दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. जैसे ही आपको ट्रांजैक्शन होता है फ्रॉड का, तो कार्ड क्या करोगे, ब्लॉक करोगे, ट्रांजैक्शन डिटेल मंगाओगे, ट्रांजैक्शन डिटेल बैंक में दोगे और फिर उसका कंप्लेंट फाइल करोगे कॉपी का, मतलब पुलिस का कंप्लेंट कॉपी लेके वापस बैंक में सबमिट कर देगा. I have written down all the steps of how to deal with this particular thing. In fact, on my website, I have given safety tips. If you see my website over here, we have given all the safety tips which are required, and we are going to put up more also over there.
I'm sorry, but I think we'll end it over here itself because then we are running short of time. So on the website, in the security tips, you will see all the safety slides of how to secure your Gmail, your Facebook, and your net banking, and a lot of other tricks will be shown over there itself. We are updating how to deal with net banking fraud, how to deal with debit card fraud. That also tips we are going to write up over here itself. You can see this, we have just started over here. So that is what we are going to put up more. You can handle the questions in the tea break also. And net banking? Net banking also, I'll mail it to you. I'll mail it to ma'am. So with this, yes, iPhone will ask for a credit card. Yes, it is safe. Actually, it kind of it is not safe, but ठीक है, सब लोग लेके जा चुके हैं और एक को लेके जाने कुछ मतलब doesn't make much of a difference. Because जो लोग iPhone 6s यूज कर रहे हैं, कितने लोग iPhone 6s यूज कर रहे हैं? iPhone 6s के ऊपर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है. 6 पे भी है. You are taking a fingerprint of a thumb. Now Aadhaar card has taken your fingerprint. I hope you are aware. The data is all going to be uploaded somewhere where you can access. And suppose if they introduce biometrics, तो अंगूठा और एक के पास भी गया है. किसके पास गया है? Apple के पास गया है. Can you not share the data with the US government later on if you wishes to? ऐसा बोलता है कि वो नहीं करता, but ऐसा कोई कंपनी है जो जिस देश में रहता है उसी देश के कानून के खिलाफ वो लड़ेगा. Some people will always have their own theories and presumptions, but I think we'll end it because we have another speaker over here. So anyone who is interested to become hackers, please control for another 1 year. 1 month, 1 hour. So sir will tell what are the after effects of becoming a hacker over here. So with this, I'd like to thank the Kolkata branch, Sonu ma'am, and all of you participants who've been a very, very wonderful and interactive.